Morning students, today we discuss new chapter. This is last one, fourth chapter, equilibrium of gases and atmospheric pressure. First of all, we define atmospheric pressure. We have already defined gases are fluids which can be compressed easily and made to expand indefinitely by increasing the volume. Air is a gas and it exerts pressure and has weight. The atmosphere, which consists of air, is supposed to be spherical shell surrounding the Earth's surface. An apparatus by which pressure of atmosphere is measured is called barometer. ठीक है, barometer is an apparatus which is used to measure the pressure of atmosphere, which consists of a straight glass tube containing mercury and having its lower end immersed in a small cistern of mercury. And this device was first introduced by Torricelli. Let ये बैरोमीटर कंस्ट्रक्शन बता रहा है उसकी, ये एक स्ट्रेट ग्लास ट्यूब जो मरकरी कंटेन कर रही है, हैविंग its lower end immersed in a small cistern of mercury. Let h be the height of mercury in the barometer and sigma density है mercury की, and pi the atmospheric pressure. Then pi is equal to, हम rho gh बोलते हैं तो यहाँ rho की जगह क्या हो गया, sigma gh. The tube has vacuum at the top and this vacuum is known as Torricelli's vacuum. It is experimentally found that pi means your atmospheric pressure it is equal to 15 lbs per square inch. lbs जो है वो हमारा यूनिट होता है, जैसे आप बोलते हो ना MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, है ना। तो जो हमारा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जो LBS है, जैसे आप MKS सिस्टम में अगर आप बात करते हो तो फोर्स के यूनिट्स आप बोलते हो न्यूटन में है, CGS सिस्टम में डाइन्स में, और FPS सिस्टम में जो यूनिट्स हैं वो हम LPS में बोलते हैं। अब FPS सिस्टम मीन्स जिसमें जो लेंथ है वो फुट में होती है, वेट जो है वो पाउंड्स में, पी का मतलब, और टाइम जो है वो सेकंड में है। तो जो यूनिट्स हैं फोर्स के वो क्या किससे डिनोट करते हैं, LBS से इन FPS सिस्टम। तो 15 LBS पर स्क्वायर इंच, क्योंकि जो प्रेशर है आपका, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये तो LBS मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया के जो यूनिट है वो इंच स्क्वायर, ठीक है। नाउ वी नो दैट डेंसिटी ऑफ we know that density changes with temperature, and therefore if we assume that sigma is equal to sigma naught at 0 degree Celsius and sigma is equal to sigma t at temperature t degree, and also if theta be the coefficient of expansion of mercury, then sigma naught is equal to sigma t into 1 plus theta t. डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद करना है, वेयर थीटा आपको बता रखा है कि थीटा की ये वैल्यू होती है और सिग्मा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर यहाँ से सिग्मा नॉट 1 प्लस थीटा टी इनवर्स, बाइनोमियल लगा दो। 1 डिग्री ऑफ तक हमने कंसिडर किया क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, हायर ऑर्डर टर्म्स हमने नेग्लेक्ट कर दी, ठीक है। हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन बाय पाई इज इक्वल टू, ऊपर जो फॉर्मूला था जस्ट हमने वैल्यू पुट कर दी उसमें, सिग्मा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, सिग्मा नॉट 1 माइनस थीटा टी इनटू एच। फर्दर वी नो दैट लेंथ ऑफ स्केल इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आप देख रहे हो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होएगा, जो लेंथ है स्केल की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। एंड देयरफॉर इफ h इक्वल टू h नोट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड h इक्वल टू h t एट t डिग्री and alpha be the coefficient of linear expansion of material of scale, then ht आपका क्या हो जाएगा, h नोट into 1 plus alpha t, ठीक है। क्योंकि h नोट जो है आपका वो हाइट है 0 डिग्री सेल्सियस पे, h टी जो हाइट है वो t डिग्री सेल्सियस पे, और अल्फा अगर आपका कोफिशिएंट है किसका, लीनियर एक्सपेंशन का, तो एच टी को हम क्या लिख सकते हैं, h नॉट 1 प्लस अल्फा टी। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, जस्ट हमने वैल्यू डाल दी इक्वेशन 2 में एच टी की, तो क्या आ गया, सिग्मा नॉट जी 1 माइनस थीटा टी, और h मींस एच टी, वैल्यू हो गई h नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। क्रोल्डी है डिफरेंस ऑफ एल्टीट्यूड्स। Using relation to the atmospheric pressure at any place can be calculated by making due allowance for the change in value of G consequent on a change of latitude. It is observed that pressure diminishes with rising above the level of place, since the atmospheric pressure at a place is equal to the weight of superincumbent column of air. Hence, if a relation is found between the height of mercury and height through which
and the ascent has been made, then the difference of the altitude at two stations can be determined by observing the barometric column at two stations at the same time. या आगे देखोगे आगे आर्टिकल्स में. चलो नेक्स्ट मेन जो है वो आपका क्या आ गया, लॉ ऑफ गैसेस. आपको पता है कि रिलेशन होता है प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, P इज इक्वल टू के रो 1 प्लस अल्फा टी. ये फिजिक्स में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो. We now deduce in two important laws governing the relation between volume, pressure, density, and temperature of the mass of law. First is Boyle's law. Boyle's law, Charles law ये पढ़ चुके हो आप लोग. Boyle's law क्या कहते हैं? If the temperature of a given mass of a gas remains the same, the pressure varies inversely with its volume. That is, P pressure is directly proportional to 1 by V. P प्रेशर, V आपका वॉल्यूम. कि जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे आपको पता है वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है, तो PV क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट, व्हिच गिव्स एन आइसोथर्मल स्टेट ऑफ गैस, बट द मास रिमेनिंग कांस्टेंट. सो मास M इज इक्वल टू रो इनटू V. रो इज मास पर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हैं तो मास आ गया. मास आपका कांस्टेंट है तो रो V इज इक्वल टू रो डैश V डैश. ठीक है, दिस इज कांस्टेंट. सो and also PV भी constant है तो PV is equal to P dash V dash. This is also constant. तो यहाँ से रिलेशन आ गया P by P dash is equal to rho by rho dash is constant से K. So P is equal to K rho. This is the Boyle's law. Next है Charles law. If pressure of a given mass of a gas remains same, अगर pressure same रहता है given mass of a gas का, the volume increases by a fraction of the volume of 0 degree Celsius for every degree centigrade rise in temperature. और अगर टेम्परेचर के राइज करने के साथ साथ आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, कितने फ्रैक्शन से ऑफ वॉल्यूम के, 1/273 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस से. इफ V नॉट बी द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड V बी द वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, देन V माइनस V नॉट इज इक्वल टू V नॉट अल्फा T, वेयर अल्फा क्या है, कितने अमाउंट से इंक्रीज होगा, 1/273. तो V नॉट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस अल्फा T. क्योंकि हमने यही कहा है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम means V minus V naught means increase in volume is equal to कितना है, 1/273 of the volume of 0 degree Celsius. ठीक है, but if rho नॉट and rho means densities जो है गैस की 0 degree Celsius and T degree Celsius पर ये, then mass remains remaining constant. mass constant तो m ये रो भी क्या है मास, ये रो नॉट V नॉट भी क्या है मास, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे T डिग्री सेल्सियस पे. तो यहाँ से रो नॉट बाय रो इज इक्वल टू V बाय V नॉट, और V बाय V नॉट क्या है 1 प्लस अल्फा T. तो रो नॉट इज इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा T. इफ P इज द प्रेशर एंड रो नॉट डेंसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, देन P इज इक्वल टू K रो नॉट व्हिच इज इक्वल टू K रो नॉट की वैल्यू डाल दी हमने, रो इनटू 1 प्लस अल्फा T. ठीक है, ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ. नेक्स्ट है एब्सोल्यूट टेम्परेचर. हमने क्या शो किया था अभी ऊपर, P इज इक्वल टू K रो इनटू 1 प्लस अल्फा T. यहाँ से हमने अल्फा को कॉमन लिया हुआ है तो ये हमारा आ गया 1 बाई अल्फा प्लस T. तो ये हो गया K रो अल्फा, 273 वैल्यू डाल दी हमने अल्फा की, प्लस T, और इसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल T से. कैपिटल T क्या है आपका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज इक्वल टू 273 प्लस T. सो PV बाई T इज इक्वल टू K रो अल्फा इंटू V. तो ये K अल्फा M, क्योंकि रो मास पर इनटू वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया तो M बच गया सिर्फ, as M is equal to rho V, क्योंकि आपको पता है M क्या होता है, रो इनटू V है. एंड दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट, K कांस्टेंट, M कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट को हम किससे डिनोट किया हमने, कैपिटल R से, और कैपिटल R क्या है आपका, गैस कांस्टेंट बोलते हैं इसको. तो PV क्या आ गया आपका, RT. ठीक है, वेयर R इज गैस कांस्टेंट. सो PV by T is equal to P dash V dash by T dash is constant which is equal to R. ओके, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस